Good evening, viewers. Namaste. Today I have come to have a very inspiring talk with Yogi Vishnu Panigrihi. He's a spiritual guru not only for Indians but all over the world. He has following of people who are connected to him and he's helping them lead very meaningful lives. Before I introduce Yogi Panigrihi, who is really humble and a very grounded kind of a person, he's not going to tell you much about his expansive influence over the world. I just want to read out a few names of some countries where people have been touched, people have been transformed due to his absolute dedication to his work as a spiritual guru. So the countries include China, of course, India is definitely on the map, United States, Indonesia, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Russia, Mexico, Japan, Ethiopia, Philippines, Egypt, Vietnam, Turkey, Germany, Thailand, United Kingdom, France, Italy, Tanzania, South Africa, Myanmar, Kenya, South Korea, Colombia, Spain, Argentina, Ukraine, Iraq, Afghanistan, Poland, Canada, Morocco, Saudi Arabia, Uzbekistan, Peru, Malaysia, Mozambique, Ghana, Yemen, Nepal, Venezuela, Madagascar, Australia, Sri Lanka, Burkina Faso, I don't even know where that is, Romania, Chile, Kaz- Kazakhstan, Guatemala, Ecuador, Syria, Netherlands, Senegal, Cambodia, Zimbabwe, Guinea, Tunisia, Bolivia, Belgium, Haiti, Cuba, Dominican Republic, Czechoslovakia, Greece, Jordan, Portugal, Sweden, Honduras, United Arab Emirates, that's Dubai, Hungary, Tajikistan, Belarus, Austria, Serbia, Israel, Switzerland, Laos, Paraguay, Bulgaria, Libya, Lebanon, El Salvador, and if you're still not tired, a few more to go, Turkmenistan, Singapore, Denmark, Finland, Slovakia, Norway, Oman, Costa Rica, Ireland, New Zealand. Kuwait, Croatia, Moldova, Georgia, Mongolia, Armenia, Jamaica, Qatar, Lithuania, Botswana, Slovenia, Latvia, Bahrain, Equatorial Guinea, Trinidad and Tobago, Estonia, Mauritius, Cyprus, Fiji, Guyana, Bhutan, Luxembourg, Suriname, Maldives, Malta, Brunei, and Bahamas. I am feeling so honored to have got this opportunity to have been able to bring you on to my talk show, the Shrutidat Talk Show with 10 News, where my attempt is to bring such people and have, heart-to-heart conversations with them so that we can really go behind the scenes of these great people, get to know them, and also get really inspired by the work they are doing and from their lives take some learnings and try to adapt them in our own lives. So before I continue, I'm sure you've understood the vast expanse of his work. And with that joy, and let's celebrate his work. And along with that, let's welcome him with a lot of joy. So, welcome, Yogi ji, to the show. And I'm really happy to have you here with us. So I would like to, share with the viewers a little bit about how I connected with you. Now, during the pandemic, the COVID time, it was a tough time for everybody. And I was, I just love doing the Navratra pujas and the kanjaks and, all that part of our Indian culture. And I was a little upset that, can't really call the Pandit home. You can't go to the temples. Temples are locked. That time they were all locked. Like there were too many restrictions. And me being on the third stage of life, there were restrictions for my movements also a little bit. So I was wondering what to do. And there I find Yogi's link online.
and Yogi Ji's link online, and I was very mesmerized, and I connected, and he was offering, a group prayer for the Navratras, and I decided to log in. And when I logged in, what I realized was like people from all over the world had logged in, and it was absolutely a new experience for me. Every night we would log in and do the prayers, and there were people from US, there were Russians, there were Britishers, there were NRIs from Canada, there were people, of course, all these countries I've just read out, so I wouldn't know who, all of them were joining in, and together with lots of group energy, Yogi Ji would conduct the prayers and we would do it with him. And I think over these last years, it's been my most magical experience personally. So after that, actually my curiosity about Yogi Ji grew, and I wanted to get to know him further. So, so I did not waste much time. I have recently visited him in Rishikesh and with a friend of mine, and he came across as such a genuine person with so much love and affection, and so much of positive energy just being in his aura. So this was a most natural, follow up to my visit to Rishikesh to him. So I would like to, call on Yogi ji to explain. First, let's begin with the online, the courses that you do. So योगी जी मुझे ये बताइए आपकी आप ऑनलाइन क्या क्या कराते हैं और कैसे कंडक्ट कर पाते हैं, हाउ हैव यू ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग, एंड कैसे ऑनलाइन मैं देखती हूँ सारी जो लेडीज हैं, इवन जेंट्स आर देयर, दे आर सो अटैच्ड टू यू, यू आर लाइक अ फादर टू देम, इतना प्यार आप ऑनलाइन कैसे भेज लेते हैं? First of all, I would salute you and I bow down to you. No, no, The divine don't do that. exists inside you. You bring me today to your show, and I'm really, really very happy for these opportunities. Although uh, I'm not a very big scholar or very big yogi, but as a small person, I try to do a big thing. So, how मैं कैसा ऑनलाइन करता हूँ, ये है जब हमारा मन भगवान के उस दिव्य प्रेजेंस से मिल जाता है, परमात्मा से मिलता है, तो संसार तो अपना ही बन जाता है। संसार के सब लोग चाहते हैं कि कैसे वो शांति को, आनंद को प्राप्त करें। आज जिन जिनको उस परम शांति को प्राप्त करना है, वो तो कैसे ही प्राप्त करेंगे। ऐसे ही हम पिछले 8 साल से लगातार हम योगा ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, और इससे हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। जैसे अभी जैसे हमारा यहाँ पर आईटी टीम है, ये सब हमारा जो मित्र वर्ग हैं, ये हमारा प्रचार करते हैं, हमारा जो काम करते हैं, जो सत्संग होता है, हमारा जो ध्यान कराते हैं, इसी से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। हमारा सारे तरीका बहुत सिंपल है और बहुत सरल है। बहुत बड़े बड़े चीज़ हम नहीं बताते, छोटे छोटे चीज़ जो बड़े काम आते हैं, ऐसे चीज़ हमारे यहाँ पर होता है। तो इसीलिए पूरे संसार जुड़ा हुआ है। जब हम थोड़ा सा बोलते हैं, सिखाते हैं, तो पूरे संसार में व्याप्त हो जाता है। आजकल तो ऐसे ही नेटवर्किंग भी इतना विशाल है कि घर बैठे दुनिया में आप जा सकते हैं। और आपने जैसे पढ़ा, इतना कंट्रीज, more than 120 countries already our teachings has gone. और मैं ट्रैवल भी करता हूँ, जैसे बहुत सारे देशों में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो इसीलिए लोग जानते हैं और इस तरह से लोग हमको एक्सेप्ट करते हैं। तो आप पहले खुद प्री कोविड ऑब्वियसली ट्रैवल करते होंगे, तो आप खुद जगह जगह अलग कंट्रीज में भी गए हैं। विच कंट्रीज हैव यू विजिटेड? कौन सी कंट्रीज में गए? देखिए, मैंने तो पहले फ्लाइट बैठा नहीं था। ठीक है, मैं गांव के गवार हूँ। गांव में मैं गाय चराता था,
खेती बाड़ी करता था, ठीक है। मेरे हाँ जी। पिताजी तो डेफ एंड डम्ब भी हैं, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और तो मैंने घर में हो गया और मैं यहाँ वृंदावन से फिर ऋषिकेश आया। तो मैं जब मेरे गुरुदेव के साथ पढ़ा 9 वर्ष तक स्वामी वेद भारती जी के साथ, तो बीच में स्वामी स्वामी जी आप अपने स्वामी गुरु वेद का नाम बताएं। स्वामी वेद भारती जी, स्वामी राम के अच्छा। जो शिष्य हैं, हाँ तो जी। उन्होंने मुझे एक बार नेपाल भेजा, हाँ जी। वो फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, तो पहली और ट्रिप आपकी नेपाल की हुई। नेपाल का था, और उन्होंने अब कितने एक कितने बड़े थे आप तब? क्या एज थी? 30 साल होगा लगता है मुझे, 27-28 साल या 30 साल के आसपास। ठीक है। तो मैंने वहां से बोधिसत्व का एक फोटो, एक मूर्ति लाना था लकड़ी का, तो मैं वहां गया और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो वहां से आने के बाद और मेरा फिर फॉरेन ट्रिप शुरू हो गया। फिर मैंने रशिया गया, फिर वहां से ब्राजील गया, फिर यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोप आई हैव विजिटेड। वाह। तो फिर ऐसे ही मैं घूम घूम कर प्रचार किया भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का। और एक चीज होता है, जो ईसाई लोग होते हैं, जो ईसाई के फॉलोअर्स होते हैं, मैं उनको बाइबल ही पढ़ाता हूँ। जो अच्छा। मुसलमान के जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको मैं कुरान ही पढ़ाता हूँ। लेकिन अच्छा। योग को हर समय मैं अलग अलग धर्मों के साथ जोड़ करके पढ़ाता हूँ। वाह। योग तो आप ऐसा ही- योगी जी, ये तो बहुत ही आपकी यूनिकनेस है, आई थिंक, कि आप बिल्कुल भी फैनेटिक नहीं है। आप सारे धर्मों को इंक्लूड कर रहे हैं और सारे धर्मों को योग से जोड़ रहे हैं। तो ये तो जी बहुत ही बढ़िया बात है, जो मुझे ये नहीं पता था, ये मुझे अभी पता चला है। ठीक उस तरीके से जैसे आपको ये नहीं पता था अब तक कि 120 कंट्रीज में फॉलोवर्स आपके हैं। लेट मी टेल द व्यूअर्स दिस, that I wanted this list of countries, and Yogi ji, in all his humbleness, had never even bothered to figure out कि कितनी countries उनके साथ जुड़ी हुई हैं. So this exercise was done just before this show, and from today he's aware of his own expansive work, and I'm so glad that I was able to do that for him. तो आप जब मुझे ये बताओ योगी जी, जब आप जैसे पहली बार रशिया गए, तो आपने वहां क्या किया? पहले मुझे ये बताओ, कैसे किया, तो मिले, रशिया कितने लोग आए? क्योंकि रशियंस तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, उनकी भाषा भी अलग होती है, यू नो एंड इतने लंबे लंबे गोरे गोरे मोटे मोटे लोग। तो और आप तो बहुत यंग होंगे तब, और उनका रिलीजन भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो फिर आप किस उससे गए उनको, मतलब आपको कुछ लगा नहीं कि ये मेरी बात क्यों सुनेंगे, या कैसे लोग हैं, कैसे मैं इन्हें समझाऊंगा? ऐसी फीलिंग जैसे नहीं आई आपको? पहली बार जब मैं रशिया रशिया गया, हाँ और जी। सिटी था रोस्तोव, रोस्तोव शहर में मैंने गया। हाँ जी। और वहां पर जब मुझे कुछ ग्रुप जो बुलाए थे, और मैं जब वहां पर योग ध्यान सब कुछ सिखाया, तो बहुत हाँ जी। उत्साहित हुए। पहले मुझे ये हाँ बता जी। गया था कि वहां तब बहुत ही कट्टर ईसाई लोग होते हैं, और हाँ वहाँ बिल्कुल। ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो हमारा भाषा हमको कैसे फॉलो करेंगे वो? हम तो हिंदू होने के नाते हमारा मंत्र है, ये है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद वो लोग एक्सेप्ट ना करें। लेकिन बिल्कुल। मेरे लिए हिंदू तो एक रिलीजन तो है नहीं। हिंदुत्व तो बिल्कुल। एक एक पूरे फिलॉसफी। समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए एक प्रणाली है, जिसमें उस सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे देश, सारे भाषा, सब लोग आ जाते हैं, ठीक है नहीं? बिल्कुल। तो मैंने हिंदुत्व को ऐसे समझता हूँ, हिंदुत्व तो जीवन शैली है। तो मैंने जब वही हिंदू जीवन शैली को सिखाया, वो लोगों को हाँ तो जी। पता भी नहीं ऐसे ही जीवन होता है, और इससे जीवन पालन करने से जीवन में इतना शांति आती है। हाँ और जी। लोग तो मुझे इतने अच्छा मानने लगे, और बहुत ही ज्यादा मुझे प्यार करने लगे। मैं बहुत लोगों को नाम भी दिया, जो योगी के नेम
किसी का नाम दुर्गा, किसी का नाम सीता, किसी का नाम गीता, ऐसे जब दिया, एक का नाम दिया था मीरा। हाँ जी। वो मीरा ने क्या किया, मेरे उस कोर्स के बाद इतना प्रभावित हो गई और उसका जीवन में इतना परिवर्तन आया कि उसने कहा कि मेरा नाम तो मैं चेंज कर दूंगा पासपोर्ट में भी। आप अच्छा, सोच वेरी सकते हैं कि उसने, मीरा ने अपने पासपोर्ट में अपना नाम चेंज कर दिया। अच्छा, वो रशियन थी? रशियन थी। तो अच्छा। ऐसे ही बहुत मजा आया। उन्होंने एक दिन बहुत बड़े हॉल में मेरा हाँ प्रोग्राम जी। रखा। करीब 150 से 200 लोग थे। अच्छा। 200 लोगों का एक बहुत बड़ा लेक्चर था जीवन में क्या करें या क्या ना करें, है ना। वाह। तो हाँ मैंने जी। उनको बताया था कि जीवन को जानने के लिए मृत्यु को भी जानना पड़ता है। जब जब व्यक्ति बिल्कुल। मृत्यु से अवगत होता है तब अपने जीवन को ठीक करके रखता है। जब आपको पता है कि आपका फ्लाइट 4 बजे निकलने वाली है, तो आप तैयारी बिल्कुल। पहले से रहेंगे। आपको ये पता नहीं कि 4 बजे आपका फ्लाइट जाने वाली है, तो आप तैयार कैसे रहेंगे? है कि नहीं? जिनको ये बिल्कुल। पता नहीं कि 4 बजे फ्लाइट जाने वाली है, वो तो तैयार कभी नहीं होगा। ऐसे ही हमारा जीवन जो दुखमय है, इसीलिए है कि हमारा अंतिम अवस्था को हमको पता नहीं, हमको अंतिम डिपार्चर का पता नहीं। जब वही बताया उनको, ये लोग तो बड़ा कष्ट होने लगा। मृत्यु के बारे में जब बोलने लगा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। अब बहुत लोग मुझे प्रश्न किए कि we wanted to hear about the happiness in the life and why you talk about death? Death. तो Yes. मैंने उनको कहा कि यही जीवन जैसे आप उत्साह से जी रहे हैं, मृत्यु भी साथ साथ तो है। ऐसे भारतीय संस्कृति यही है कि बिल्कुल। हम लोग सब कुछ को साथ में चलें। तो रशियन लोग बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों को, और वो कल्चर देख करके मुझे थोड़ा सा बहुत आश्चर्य भी लगा। और दूसरा, भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय परंपरा के प्रति, योग के प्रति और भारतीयों के प्रति इतना श्रद्धा, इतना विश्वास, इतना प्रेम देख करके मैं तो हृदय गदगद हो गया। हाँ जी। रशियंस तो राज कपूर के टाइम से काफी प्रभावित हैं, बॉलीवुड से भी हैं। एंड दे लव लर्निंग हिंदी। सोवियत नारी, उनकी किताबें भी आती हैं हिंदी में, मैगजीन्स आती हैं। तो दैट ऑफ कोर्स वी नो दैट दे फॉर मेनी मेनी इयर्स दे हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ इंडियंस, हिंदी सॉन्ग, इंडियन कल्चर। तो वो तो है ही है, बट स्टिल आई थिंक जो आपने काम किया है वो बहुत बड़ा किया है फिर भी, to bring that energy in you to go and actually meet them। और उनको नाम भी दे दिया आपने, किसी को मीरा बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और उनकी पूरी जीवन शैली को ही बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। और उन्हें ये समझा दिया कि अगर अच्छे से जीना है तो पहले मौत को समझो। हाँ, to understand life we have to understand death। I'm totally with you on that, विष्णु जी। एंड ये एक चीज है जो आई थिंक नॉर्मल जिंदगी में हम लोग भूल जाते हैं कि वी आर हेयर ओनली टेम्परेरीली। और ये जो हमारा शरीर है 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है, ये वापस 5 एलिमेंट्स में ही चला जाएगा, है ना। ओनली आवर सोल लिव्स। सो बट द सोल, यू नो इटर्नल, कि सोल हमेशा जीता है। और सोल, शरीर तो ऐसे ही है, मतलब कपड़े बदलने की तरह होगा। दिस इज आवर इंडियन अंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में आप थोड़ा कुछ समझाएं हमारे व्यूअर्स को कि कैसे सोल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर कैसे एट द सेम टाइम योगा तो हम शरीर के लिए भी करते हैं ना, तो शरीर के लिए क्या करना चाहिए और सोल के लिए क्या करना चाहिए। थोड़ा इस चीज के बारे में आप बताएं गुरु जी। देखिए, हमारा पूरा ध्यान शरीर में जाता है कि हम जीवन में अपने आप को शरीर मान करके इस नाम और रूप में हम सारा संसार का सारे क्रियाकर्म करते रहते हैं। लेकिन हाँ ये जी। शरीर जिससे जीवित है उसको कहते हैं प्राण, है ना। तो हाँ जी। जो हम श्वास के द्वारा ही ये जीवन चलता है, और जब श्वास लेते हैं, श्वास एक हो जाता है शरीर में, है कि नहीं। जैसे शरीर और श्वास जो जा रहा है, श्वास के बिना शरीर नहीं जी सकता। श्वास गया तो ये शरीर मर जाता है। लेकिन जब तक ये श्वास चलता है तब शरीर और श्वास मानो एक जैसा लगता है हमको,
हाँ जी। है कि नहीं? तो हम हाँ उसको जी। डिवाइड नहीं कर पाते। ऐसे ही ये श्वास जो चलता है, श्वास हम क्यों लेते हैं? कि हमको जीना है, जीने की इच्छा है, तो इच्छा मन का होता है। तो मन जब तक चलता है तब तक हम लोग सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, सब कुछ काम करते हैं। मन के बिना कुछ संभव नहीं है, इवन श्वास भी नहीं ले सकते मन के बिना। So, we are not only a physical being, we are also a breathing being, we are thinking being, we are emotional being, also we are a spiritual being. Spiritual का मतलब आत्मा के से रिलेटेड है, स्पिरिट से रिलेटेड है, हम आत्मा भी हैं। तो लेकिन अभी क्या है, आत्मा को हम अलग से नहीं देख पा रहे हैं। हम शरीर, मन, आत्मा सभी को एक कर दिया है, यही मैं हूं। जब हम आत्मा को जानने लगते हैं तो हाँ हम अपने आप को अलग फिर महसूस करते हैं। ये पहला स्टेज में हम आपको अलग महसूस करते हैं, और एंड स्टेज में जब हम आत्मा को जान ले जाते हैं तो पूरे संसार को एक समझते हैं। सर्वम बिल्कुल। खलुदम ब्रह्म। पहले तो अहम ब्रह्मास्मि, हाँ पहले जी। अहम ब्रह्मास्मि आता है हम कि मैं ब्रह्म हूं, शरीर मन नहीं, शरीर नहीं, मैं ये कुछ भी नहीं, ये संसार नहीं है। मनोबुद्धि हाँ जी। अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, ये सब भावना पहले होती है। उसके बाद अंत में जब ऐसे ही अपने आत्मा में हम रमण करते हैं, फिर देखते हैं कि ये तो सारा संसार मेरे से सृष्टि है, मैं नहीं तो संसार होगा ही नहीं। तो जैसे सूर्य के बिना यहाँ के पेड़ पौधे भी नहीं हो सकते, सूर्य के बिना पेड़ पौधे, ये जीवन हो सकता है क्या? नहीं हो नहीं। सकता। तो जैसे पेड़ अगर जिंदा है, हम जिंदा हैं, तो किसके लिए? सूर्य के लिए। सूर्य के बिना हम यहाँ पर टिक नहीं सकते। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम सूर्य ही तो हैं, सूर्य का स्वरूप तो है। अगर सूर्य हाँ के जी। बिना ये सृष्टि असंभव है, तो हम भी तो सूर्य का अंश हो गए ना। हाँ हमारा जी। जीवन सब कुछ सूर्य से रिलेटेड है। ऐसे ही आत्मा के बिना यह संसार संभव नहीं हो सकता। तो पूरा संसार ही आत्मामय, ब्रह्ममय ये संसार है। हाँ जी। इन द बिगिनिंग यू फील। तो आप आपका कहने का मतलब है कि ये सारी जो शक्तियां हैं ये एक्चुअली में एक ही हैं। सब सब कुछ एक है। हमारे अंदर है, हमारे अंदर ब्रह्म भी है और सभी के अंदर ब्रह्म है। और वो तो अंदर दैट नहीं, सब ब्रह्ममय है। यूनाइटेडनेस। संसार हाँ। ब्रह्म के अलावा है, कुछ है ही नहीं। हाँ जी, तो ये जो यूनाइटेडनेस है ये हमें समझनी चाहिए, है ना? जी दैट जी वी आर एक्चुअली वन। बट योगी जी। जी, ये एक्चुअली में वन है आप कह रहे हो। मुझे तो लगता है यस, ये बिल्कुल ठीक होगा कि हम एक ही हैं। और एक तरह से अब जैसे इतने सारे लोग इतनी कंट्री से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं सोल्स कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं सेम अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। चाहे हम अलग भी जी रहे हो तो भी अंदर से हमें पता है कि ये चीज ठीक है, तभी हम कनेक्ट होते हैं। बट एट द सेम टाइम दुनिया में फिर गुरुजी इतना डिफरेंस, इतनी रिफ्ट्स क्यों, इतने झगड़े क्यों है, इतना नैरो माइंडेडनेस और ये अलगपन, और जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं वखरे वखरे, अलग अलग, अलग अलग क्यों रहना चाहते हैं लोग? क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानते। आत्मा अच्छा। ब्रह्म जो एक है, सभी में है और सभी ब्रह्ममय है, उसको हम नहीं जानने के कारण ये झगड़े, ये स्वार्थ और ये सब कुछ नेगेटिविटी सब उसी से, अज्ञान से जनरेट होते आई हैं। थिंक ये दुनिया की आत्मा को मोह जानना माया ही जो क्या? है। हाँ जी। मटेरियलिज्म में आपको लगता है बहुत ज्यादा घुस जाते हैं हम लोग, दैट रैट रेस की, किसके पास ज्यादा है, किसके पास, सारे इसी उसमें दौड़ में लगे हुए हैं कि मेरी कार उससे, उसकी कार से बड़ी हो, मेरा बंगला उसके बंगले से बड़ा हो, मेरे कपड़े उससे बड़े हो, अच्छे हो, लेडीज के डायमंड्स बड़े होने चाहिए सबसे, यू नो तो ये जो मटेरियलिज्म, मतलब आपको लगता है कि ये जो मटेरियलिज्म है दुनिया में, ये कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिज्म से बिल्कुल हटा देता है, और इसी यही रीजन है जिससे झगड़े होते हैं? यही तो माया है, यही तो अच्छा। अज्ञान है, यही माया हाँ है, जी। यही अज्ञान है। जैसे सूर्य के द्वारा ही इंद्रधनुष तैयार होता है, सूर्य के लाइट हाँ से जी। इंद्रधनुष तैयार होता है कि नहीं? हम इंद्रधनु का सुंदरता देखते हैं,
लेकिन सूर्य का जिससे आता है उसको तो नहीं देखते। जितना नहीं। मेटेरियलिस्ट देख रहे हैं संसार, पहाड़ पर्वत धन संपत्ति सुंदरता, जो भी बाहर देखते हैं सब कहाँ से आता है? सब आत्मा का ही सुंदरता है। सब बिल्कुल। यही यही अगर आत्मा न होता, सूर्य न होता, इस संसार के सुंदर दिखता है क्या? सुंदर अंधेरे में कोई सुंदर दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन सूर्य के लाइट से जो सब कुछ सुंदर दिखता है, तो हम वाह वाह, देखो पहाड़ कितना सुंदर है, देखो नदी कितना सुंदर है, देखो ये व्यक्ति कितना सुंदर है, देखो ये फूल कितना सुंदर है। हम जो बोलते हैं इससे पीछे कारण है कि दैट इज लाइट। और हम अगर लाइट को जान गए तो इस सारे संसार की सुंदरता फेक हो जाता है। इसीलिए तो हाँ जी। संत क्या करते हैं, जो अंदर की उस आत्मा को पहचानते हैं, जान जाते हैं, तो फिर इस संसार को वही उसी के इस स्वरूप मान करके चलते हैं, वही दिखाई हाँ देता है जी। हमको। तो ये जिस चीज को आप कह रहे हैं लाइट, इसी को हम गॉड कहते हैं, यही भगवान है वही क्या? लाइट है, वही गॉड है, यही आत्मा है, अच्छा। वही शांति है, तो वही आनंद है। हाँ जी, आई एब्सोल्युटली एम विद यू कि अगर हम उस लाइट को पहचान लें और विद फेथ, जैसे अलग अलग धर्मों में फेथ है, जिसको भी जिसमें फेथ है, अगर हम फेथ से जिए, मतलब ये समझ के जिए कि जो लाइट है वो हमारे लिए है और जो भी होगा हमारे लिए अच्छा होगा, तो फिर नेचुरली हमारे को कोई चिंता ही नहीं रहेगी, कोई डर ही नहीं रहेगा और कोई गम भी नहीं रहेगा। नो फियर, नो वरी, नो सॉरो, इफ वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू गॉड और टू द लाइट और टू द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स। मैं ठीक कह रही हूँ गुरु जी? कहीं ना लेकिन कहीं फेथ आपको जो लगता होता है ना, है? आपने हाँ फेथ जी। के बारे में बता रहे हैं, हाँ जी। फेथ किसी को करना हम्म। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भगवान को फेथ करते हैं। हाँ वो जी। फेथ जो क्रिएट होता है एक प्रकार से कंसंट्रेशन की अवस्था है कि मैं भगवान कृष्ण को मानता हूं, तो मेरा हम्म। भगवान कृष्ण में लगा रहे, ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। अगर मैं कृष्ण को फेथ करता हूं तो राम को क्या करूंगा? हाँ, तो क्या फेथ नहीं करूंगा उनको? ऐसे नहीं। तो करें। फेथ हाँ। आत्मविश्वास से भरे हुए फेथ ही फेथ होता है, जो एक्चुअली फेथ हम दूसरों को नहीं करते, अपने आप में भगवान होना चाहिए। अपने आप को, जो अपने आप का विश्वास नहीं करता और किसी भगवान में भी वो हम्म। विश्वास नहीं कर सकता। ये बात आपने बहुत अच्छी करी गुरुजी। आई थिंक आई विल जी। मेक अ नोट ऑफ दिस कि अगर फेथ करना है तो पहले सबसे अपने आप में फेथ करिए, जी उसके बाद एवरीबडी, फेथ हैव इन एवरीवन, है ना? जी क्योंकि जी सभी में ब्रह्म है और जी लाइट इज एवरीवेयर, ब्लेसिंग्स आर जी एवरीवेयर। सो जी। दिस इज सच अ लेकिन वंडरफुल फेथ थॉट। देखिए, फेथ इमोशन से जुड़ा होता है। हाँ, ये लेकिन भी बात मैंने कही। हाँ। लेकिन अगर आपका केवल आप इमोशनली जिंदगी को जिएंगे तो हम्म। लोग तो आपको ठग लेंगे क्योंकि क्योंकि जो भावनाओं से केवल जीता है और इंटेलिजेंस हाँ। में कमी होता है, वो हाँ फिर जी। आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको कोई इमोशनली कुछ भी कर दे, किसी को आप फेथ करते हैं, वो ठग भी सकता है आपको, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ। इसीलिए उसमें तो इंटेलिजेंस का भी प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। जिसको आप फेथ करते हैं, आपका इंटेलेक्चुअली भी उसका स्ट्रांग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और मतलब इसको आप फेथ करेंगे जिनसे रियली आप अनुप्राणित हो, लाभ मिलता हो इस तरह से। हाँ जी। तो नहीं, मुझे ये बताओ, ये जो इमोशंस की बात आपने करी कि अगर हम इंटेलिजेंस नहीं रखेंगे और सिर्फ इमोशंस और भावनाओं में ही बह जाएंगे, तो हम्म हम आगे भी जा सकते हैं और वी कैन बी मिसलेड, है ना? हम्म हम्म तो ये हम्म इमोशंस को कैसे, मतलब बैलेंस किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए गुरुजी? बिकॉज जी आई एम अ जी वेरी इमोशनल पर्सन। मुझे हम्म कोई, हम्म मतलब थोड़ा सा भी अच्छा बोल दे तो मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगता है, और कोई बुरा बोल दे तो मुझे बुरा लगने लगता है। आई जी एम, जी I feel I'm like that, very, very hypersensitive to things. And so जी I really am trying very hard to control all that. So, give me some tips, and the viewers who are with us will also like that. कि emotions को, because by and large, I think women सारी बहुत emotional होती हैं, especially हम्म mothers. हम्म तो आप हम्म बताएं, कुछ tips बताएं, how to really become strong in your mind and control your emotions. जी। देखो, इमोशन, if your emotion is guided by your intelligence, then only your emotion become creative.
Okay. If your emotion is not guided by your intelligence, then your emotion will take you to the hell. Okay. ठीक है? क्योंकि इमोशन सबसे बड़ा शक्ति है, सबसे बड़ा शक्ति इमोशन है। भावना है हाँ जो जी। व्यक्ति को महान बनाता है, भावना है जो व्यक्ति को बिल्कुल छोटा बनाता है। तो उस भावनाओं से व्यक्ति खुदकुशी भी कर देता है, अपना जान भी गवा देता है, और उस भावनाओं से व्यक्ति प्रेरित होकर के एक कीट से लेकर के महान बन जाता है। छोटे कहीं आप देखिए, मैं कहीं गांव का आदमी, खेती करने वाला, गाय चराने वाला लड़का, बिल्कुल। ठीक है, और आज तो मैं कृष्ण जी भी क्या थे, कर रहा हूँ, योगी ये जी तो मेरा कृष्ण जी भी इमोशनल, वाले थे। ये इमोशन है ना मेरा। हाँ जी। नहीं, हाँ फिर अच्छा उस बात पे आते हैं योगी जी। आप कह रहे हो बचपन में जैसे आप खेतों पे थे, मैंने कहीं आपके, मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था जैसे आप बहुत छोटे थे तब से आप 3-3 बजे जाके मेडिटेशन करते थे किसी के साथ। तो जी जब आई थिंक 10 साल की उम्र में ही आपने मेडिटेशन करना सीख लिया और करने लगे थे। और कई बार आप स्कूल बंक करके, आजकल के बच्चे पिक्चर देखने जाते हैं, आप स्कूल बंक करके स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज में जाते थे और योगियों जी से ज्ञान लेते थे। तो ये मुझे जी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसके बारे में कुछ बताओ योगी जी प्लीज। बचपन की बातें बताओ कि हाउ एज अ चाइल्ड यू वर कनेक्टेड टू दिस यू नो जी सीकिंग स्पिरिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जी। देखिए, अ, सौभाग्य से एक आध्यात्मिक परिवार से जन्म होने के कारण, हाँ जी। और मेरे दादा फादर साइड में भी और मदर साइड में भी दोनों ही बहुत ही अच्छे मास्टर थे। हैं? तो उनके गोद में ध्यान करना, पूजा करना, पाठ करना मैंने किया है, और उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि आज मैं मोटिवेटेड हूँ। प्लस उसके साथ-साथ मेरे परिवार के जो एक बहुत एनलाइटेंड मास्टर थे, तो उन्हीं के पास में गया, बहुत सारे हुआ है। और मेरे चाचा खुद सुबह 3 बजे उठा करके मुझे नदियों ले जाना, मेरे डर को दूर करना, और सुबह-सुबह ध्यान करना, मोहम्मद मुद्गर का पाठ करना, तो जीवन के पहले चरण से ही एक वितराग की स्थिति में लाने के लिए हमारे परिवार वालों ने कोशिश की है। मेरी माँ जब रामायण पढ़ती थी, उड़िया रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो मैं हालांकि समझता नहीं था, लेकिन सुनता था। तो ये सभी कारण है। तो ये कि जो आज उन्हीं सॉरी का आपने ये जो पाठ मेंशन किया अभी क्या महामुद्गर, नाम। हाँ जी। शंकराचार्य के द्वारा लिखित महामुद्गर, भज अच्छा, गोविंदम आता है शंकराचार्य ना। जी का लिखा हुआ है। जी, अच्छा, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है उसमें। देखिए, मोह मोह को तोड़ने के लिए शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर श्लोकों का उन्हें बनाया, जिससे ये सांसारिक सारी चीजें निरर्थक और केवल आत्मा 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 की तरफ जाना, अपने आत्मा को पहचानना ही सार्थकता है, ऐसे उन्होंने बताया। क्योंकि फालतू चीजों से अपने को दूर करके केवल भगवत उस स्थिति में लाने के लिए उन्होंने कोशिश किया, उस सूत्रों के द्वारा, उस श्लोकों के द्वारा। तो उसी का पाठ करता था। अच्छा, तो मतलब 10 साल की उम्र से ही आप मोह माया से हट गए पाठ करने की वजह से। और लेकिन वो याद करता था, वही उसको सोचता था उसी बारे में। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो उसका डेफिनेटली उसका परिणाम तो हमारे सामने ही है। हाँ जी। जिस तरीके से आप हैं, जो आपका कैरेक्टर है, जैसे वो अभी भी हम लोग। आप जैसे बता रहे हैं कि स्कूल चलता था, और मैं स्कूल नहीं जा करके मैं सत्संग चला जाता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे लिए। हाँ जी। मेरे ये माँ तो को नहीं बहुत पता था, खूब मेरे है। किसी घर में और नहीं पता जब आप था कि मैं सत्संग में सत्संग बैठते थे, गुरुजी जो गुरु देखते नहीं थे कि ये स्कूल का बच्चा आके बैठ के इतने ध्यान से सुन रहा है, आपको कुछ कहते नहीं थे, लाइक कनेक्ट होते थे अरे, आपसे। देखिए, कथाओं में, कीर्तनों में तो बहुत भीड़ रहता है। भीड़ के हाँ कंडर में जी। बैठे तो किसे पता है। अच्छा, पता नहीं लगता। हाँ पर आपने बहुत कुछ ग्रहण किया होगा, आई एम श्योर, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि जब हम कुछ ध्यान से सुनते हैं तो वो सारी उम्र भूलता नहीं है। एंड जी ठीक है, तो ये मोह माया का तो हो गया काम आपका बचपन में ही ठीक।
मेरे पिताजी बताया करते थे कि काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार। अहंकार तो आप में कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक। ये काम जी और क्रोध को भी कंट्रोल आपने बचपन में ही कर लिया था, गुस्सा छोड़ दिया था। और कि कैसे, मतलब कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ कि लेटर इन लाइफ आपको चैलेंज करना पड़ा, कभी गुस्सा आया, कुछ ये कोई नेगेटिविटी आई लाइफ में एज अ यंग मैन, मतलब बिल्कुल। जब आप बड़े देखिए, हुए? जीवन का क्योंकि जैसे टीनेज में नेगेटिविटी। सारे लड़के बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं। आई एम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, तो मुझे अच्छा आइडिया है कि कैसे माइंडसेट्स चेंज होते हैं, क्या फेजेस आते हैं बच्चों के। तो टीनेज में जैसे रिबेलियसनेस नहीं आई कभी? ये नहीं लगा कि अब मैं नहीं करूंगा पाठ, या मैं नहीं करूंगा ये सब, मैं चला आध्यात्मिक जाता हूँ? आध्यात्मिक अभ्यासों से मैं दूर कभी नहीं भागा। कभी भी नहीं गए? वेरी नाइस। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कॉलेज में एडमिशन किया था, हम्म। तो फिर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, आईटीआई। मेरे घर वालों ने कहा कि भाई नौकरी भी करना चाहिए, हैं? बिल्कुल। नौकरी करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, तो आप आईटीआई में ज्वाइन कर लो, वेल्डर बन जाओ। तो मैंने गया, अच्छा। 1 साल का वेल्डिंग किया। ट्रेनिंग दिया, ठीक है। तो वेल्डिंग ट्रेनिंग किया, जब मैं फाइल में वो कर रहा था, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मेरा काम नहीं है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारी चीजें, अंदर से हैं? आप तो गुरु थे ना। हाँ, हाँ जी। हाँ, लेकिन लेकिन फोर्सफुल में यहाँ उधर आ गया था। तो फिर मैंने उसके बाद फिर कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में मैंने जब भी हमारा टीचर्स जो है, प्रोफेसर्स के भगवान के बारे में बोलते, कि किसी धर्म के बारे में बोलते, तो मैं उनको पूरा एकदम रुक देता था। भाई ऐसा क्यों गलत बोल रहे हैं आप? भगवान, हाँ जी। अगर इतना विश्वास है, दिखाओ भगवान कैसा होता है, क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो भगवान के बारे में क्यों बोल रहे हो? इस तरह से मैंने उनके साथ डिबेट करता था। अभी अच्छा। मैंने 15 दिन पहले मैंने उस कॉलेज को घूमने गया था। मैं प्राय जाता हूँ जब उड़ीसा जाता हूँ तो उस अच्छा। कॉलेज वालों ने, हमारे जो प्रोफेसर 2-4 अभी थे, तो बहुत वही बता रहे थे उनको स्टूडेंट्स को, देखो ये विष्णु है। जब पहली बार उन्होंने लिखा था मैगजीन में, तो हम ये नहीं सोचे थे कि विष्णु ही लिखे होंगे उसको। लेकिन जब अभी हम विष्णु को देखते हैं कि हमारे सामने ये हमारा गुरु बन गए हैं, तो अभी विश्वास होता है कि उनके द्वारा लिखित यही जो पत्रिका निश्चित रूप से प्रेरणादायी था, और बहुत खुश होते हैं। हाँ तो जी। आई एम मैं बहुत श्योर आपके रिबेलियस स्कूल और कॉलेज वाले तो बहुत ही प्राउड फील करते होंगे कि आप उनके एलुमनाई हैं। तो ये जी, तो है ही है। और बहुत कुछ जी। आपसे सीखते भी होंगे जब भी आप जाते हैं वहां पे। तो दिस इज और सो उन्हीं, लवली। वो मेरे गुरु जिंदगी भर रहेंगे। मैं उनसे प्रेरणा अभी भी लेता रहता हूँ, क्योंकि गुरु, हाँ। हम कितना भी आगे चले जाएं, अपना माता पिता, हाँ। अपना गुरुजन हर समय हमसे श्रेष्ठ रहते हैं। हम तो उनके बच्चे अभी भी हैं। हाँ जी। एक आपकी बात है कि आप हर काम अपना बस भगवान को डेडिकेट करके ही करते हैं, इसलिए आई थिंक वो कहते हैं ना, अल्टीमेटली तो जो लाइट है या भगवान है वो सबकी सुनता है। और अगर आप उससे कनेक्ट हो जाओ तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। और मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में उनको ऐसे ढाला है कि आपके लिए भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप सोचते हो आप करते चले जा रहे हो। और आप इतनी अच्छे अच्छे काम कर रहे हो। मैं कुछ बातें आपकी, कुछ मुझे पता है, कुछ अभी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। तो मुझे, पर पहले लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड स्कूल। कि ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन 120 कंट्रीज से लोग जुड़े हैं, पर मुझे ये भी पता है कि ऑफलाइन भी इन कंट्रीज से लोग आए हैं। ओवर 100 कंट्रीज से लोग स्पेशली आए हैं गुरु विष्णु को ऑलरेडी मिलने, और उनके कार्यक्रम में पार्ट लेने और उनसे कुछ सीखने। तो ये जो ऑफलाइन आपने वर्ल्ड स्कूल खोला है ऋषिकेश में, कैसे आप उसको आपने ऑर्गेनाइज किया और कैसे आप क्लासेस करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें, ताकि उनमें से कुछ इच्छुक हों वहां आके आपसे सीखने के लिए, आपको मिलने के लिए, तो उन्हें थोड़ा आइडिया हो कि कहाँ वो जा रहे हैं और क्या उन्हें मिलेगा वहां से। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में हमारा 5 सेंटर्स हैं। हाँ जी। 5 सेंटर में से सबसे बड़ा सेंटर जो है वो वर्ल्ड पीस योगा स्कूल है, और समाधि योगा आश्रम। ये अच्छा। दो, समाधि और वर्ल्ड पीस, ये नाम देने के पीछे बहुत एक प्रकार से एक कहानी भी है। जो हम एक तो भगवान का अंश भी हैं, और हम एक शरीर भी हैं जो वर्ल्डली हैं। हम वर्ल्ड का भी एक पार्ट हैं और भगवान का ही पार्ट हैं।
केवल हम भगवान के पीछे चले जाएंगे तो ये शरीर क्यों बनाया हुआ है कि नहीं? और अगर शरीर के पीछे चले जाएंगे कि भौतिकवादी हो जाएंगे तो हम तो अपने उस लक्ष्य के प्रति नहीं जाएंगे। तो समाधि अपने जीवन में हर समय समाधि में रहना मतलब अपने आप को उस परम स्थिति में रखना और इस शरीर और मन से समाज की सेवा करना। इसीलिए वर्ल्ड पीस नाम दिया। तो वर्ल्ड पीस योगा स्कूल जो है बहुत सारे कंट्रीज से यहाँ आते हैं, हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं। करीब महीने में हम अबाउट 20 कोर्सेज कराते हैं, 20 कोर्सेज योगा रिलेटेड, आयुर्वेदा, कुंडलिनी, तंत्र, मंत्र और थेरापीज, हीलिंग्स आदि आदि टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कराते हैं। हम बेसिक कोर्सेज से लेकर के एडवांस कोर्सेज कराते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम्स है, स्कूल है, वो योगा अलायंस से रजिस्टर्ड कोर्स होता है ताकि संसार के हर कोने से लोग आ सकें। और अभी हम केवल विदेशों से नहीं, भारतीय भी बहुत सैकड़ों विद्यार्थियों को, हजारों विद्यार्थियों को हमने ट्रेन कर रखे हैं, जिससे एक पूरे संसार में एक नया ये बन रहा है ताकि पूरा संसार में योग फैल जाए, है ना? बहुत बढ़िया। तो 20 कोर्सेज से ज्यादा कोर्सेज आप कराते हैं और 5 सेंटर्स आप ऋषिकेश में भी चला रहे हैं जहां बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिल रहा है। और अब जल्दी से थोड़ा सा, आई नो आपका टाइम हो रहा है अगले आपके अपने योग सेशन के लिए, तो मैं ज्यादा नहीं रोकूंगी आपको। थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपके साथ मैं जुड़ी थी कि कुछ ऑर्फन्स हैं, कुछ लड़कियां हैं जिनके लिए आप कुछ स्कूल खोलना चाह रहे हैं उड़ीसा में। और हम जो भी आपके साथ जुड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए हम कुछ कर पाए और इन लड़कियों को अच्छा सा एक शिक्षालय बना के दे सके जहाँ वो अच्छे से सीख सकें और उनकी लाइफ में थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ अच्छा हो। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जल्दी से बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। श्रुति जी, हाँ जी। आप बहुत आज मेरे भावनाओं को आपने व्यक्त करा रहे हैं, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, मेरे तो सोचा भी नहीं था कि मैं योगा टीचर ही बनूंगा, इतने देशों में जाऊंगा, इतने देशों को पढ़ाऊंगा, ये भी मेरा सोचा भी नहीं था। हाँ लेकिन जी। भगवान ने मुझे यहाँ तक ले आए हैं, इसी के पीछे कोई कारण होगा। वो कारण क्या है अभी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि मैं 19 साल की उम्र में मेरा हार्ट का सर्जरी हुआ था, मैं मरने वाला था। बचपन से मैं जब छोटा था तो हार्ट का डिजीज था बहुत जबरदस्त। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, भगवान ने मुझे जिंदा किया और उन्हीं की कृपा से मैं अभी अपने जीवन को समाज के लिए दे रहा हूँ। तो हाँ जी। वर्ल्ड पीस योगा स्कूल, समाधि योगा आश्रम, हमारा स्कूल बाली में भी है, यूरोप में भी बहुत सारे देशों में है, हमारे सेंटर्स चल रहे हैं अलग अलग देशों में। और जो भी फंड्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं, और अभी पूरा टोटली 100% फायदे हम चैरिटीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ जी। हालांकि अभी हमारा ग्रोइंग पीरियड है, अभी इतना नहीं हो रहा, लेकिन अभी आश्रम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो सपना है वो है हाँ जी। जो गर्ल्स प्रोजेक्ट हमने किया और स्कूल्स। हाँ जी। अगर एक हम कर पाए भारत को सुधारने के लिए, केवल एजुकेशन को ध्यान दिया जाए, अगर बचपन से हम बच्चों को आध्यात्मिक और पूरे बिल्कुल मोरालिटीज का हम ध्यान दें, उनको सिखाएं और साथ साथ जो भी मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी दें, निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे चल के भारत का नाम रखेंगे। तो स्पेशली गांव-गांव में पढ़ाई पूरी बहुत ही स्थिति बहुत ढीला है। अभी मेरे पास एक बालक है, उसको ABCD भी जेड तक नहीं आता, वो 8 क्लास पास कर चुका है। उसको मैं हाँ देखता जी। हूँ कि क्या स्थिति है अभी एजुकेशन का। तो अभी हम लोग एक ऐसे ही एजुकेशन का डिजाइन कर रहे हैं जिसे हम चेन स्कूल हो सके, सस्ते से सस्ता पढ़ाई हो, बहुत कम से कम हाँ फीस जी। में हम बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे पाएं। और मैं नाम भी सोचा है, वर्ल्ड पीस इंटरनेशनल स्कूल।
ऐसे ही एक इंटरनेशनल, हम क्योंकि हजारों लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, उन लोगों को भी एक मौका देना है सेवा करने के लिए। तो वही संसार हाँ के लोग अगर भारत आएं और स्कूल में जाएं, थोड़ा थोड़ा सेवा करें, तभी बहुत अच्छा रहेगा। और हम पूरी हाँ तरह से वेद वेदांत शास्त्रों को हम लेके आना है हमारे करिकुलम पे, और साथ ही साथ बिल्कुल। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी हम पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल बहुत जो सबसे बड़ा कार्य चल रहा है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स प्रोजेक्ट, हाँ, मतलब हम स्कूल बना रहे हैं बालिकाओं के लिए, जिससे वो रह करके इस एजुकेशन को पढ़ें। क्योंकि बालिकाएं जब समाज में एजुकेटेड होंगे और शक्त होंगे, ताकतवर होंगे, तो क्योंकि वही परिवार के तो मूल हैं। आगे चल बिल्कुल करके जब माँ बनेंगे, ऐसे माँ संसार के लिए बिल्कुल वरदान होते हैं। माँ ही होता है जो संसार को परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए महिलाएं सशक्त होंगे तो समाज सशक्त होगा, महिलाएं दुर्बल होंगे तो समाज दुर्बल हो जाएगा। तो इसीलिए पूरा समस्त मातृवर्ग और बालिकाओं को भी मैं अपने भगवती के स्वरूपा मानता हूँ। उनकी सेवा करते हुए इस जीवन जाए, ताकि वही समाज का निर्माण करते रहें। हम रहें न हाँ रहें, समाज को आगे बढ़ाएं, यही मेरा सपना है। हाँ जी, बहुत ही प्यारा सपना है गुरुजी, और जरूर पूरा होगा, जरूर साकार होगा। और ये बहुत ही आपका एक उम्दा शिक्षालय बनेगा, और वहां से जो बच्चे निकलेंगे वो दुनिया में बहुत नाम कमाएंगे, और आपकी जितनी भी टीचिंग्स हैं उनको आगे लेके जाएंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट, एंड माय हार्ट इज विद यू इन दिस। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे लड़कियां शिक्षित हैं, जहाँ पे माएँ सशक्त हैं, वहां पे ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया की हो सकती है। वहीं पे ग्रोथ है, वहीं पे सब कुछ है। तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है वैसे। एंड पर ये आपकी भी बात ठीक है, क्योंकि मैं भी काफी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती रही हूँ टू add on and help children read, read books and get into the reading habit. और मुझे भी ये चीज फील हुई कि क्योंकि कुछ थोड़ा सा ऑफ कोर्स कुशनिंग देने के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया कि 8 तक बच्चों को फेल नहीं करते, पर उसका ये थोड़ा सा नेगेटिव असर आ गया है कि बच्चे 8 तक तो पढ़ ही जाते हैं, तो उसमें पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो 8 में पहुंच के भी बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी भी पढ़ना नहीं आ रहा। तो इस चीज को आई थिंक जितने भी लोग हैं जो जानते हैं छोटे बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर सभी एक या दो बच्चों की मदद करते हैं तो ये चीज बदल सकती है। कोई आई फील कि एक अलग स्कूल तो चलो अच्छी बात बन रहा है, पर जो ऑलरेडी स्कूल हैं, जो ऑलरेडी जहाँ पढ़ाइयाँ हो रही हैं, जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, वहां पे भी अगर कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ शिक्षिकाएं हैं जो इस चीज को सुन रही हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट ए लिटिल मोर। जो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनको थोड़ी और सपोर्ट दें, ताकि वो उतना कम से कम जो उनका लेवल है 8 तक उस पे पहुंच पाए। और दिस इज सच अ वंडरफुल सेशन आई हैव हैड विद यू गुरुजी। आई एम सो सो हैप्पी कि आप आए और हमारे व्यूअर्स से कनेक्ट हुए, और आपने अपनी अंदर की बातें, अपने बचपन की बातें हम सबसे इतनी ओपनली शेयर करी हैं। एंड आपकी लाइफ से मुझे जो प्रेरणा मिल रही है वो ये है कि चाहे आपके यू मेंशन्ड योर फादर वाज नॉट able to hear, and was he dumb also, like बोल भी नहीं पाते थे? यस, हाँ, and you बोल came नहीं from पाते हैं, that। सुन नहीं पाते हाँ, एंड उस बैकग्राउंड से भी आके, और फिर 19 साल की उम्र में आपको हार्ट इश्यूज भी हुए। और मैं व्यूअर्स को बता दूं कि इनका जब इनकी शादी भी हुई, इनकी वाइफ के साथ भी हेल्थ इश्यूज रहे हैं। he has overcome and put everything in balance, and at the same time he has devoted his life completely, पूरी तरह से समाज को बेहतर बनाने के लिए लगे हुए हैं। और कभी भी इनके मन में ये नहीं आता कि मैं कैसे करूं, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, या मेरा ये है या मेरा वो है। दिस इज समथिंग जो मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ इस चीज के लिए। और थोड़ा सा आप जल्दी से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, यूथ को कुछ कहना चाहेंगे, तो आप बताइए, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू एवरीबॉडी बिफोर यू लीव? देखिए, जीवन में तो समस्या आते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं बहुत समस्याओं से गुजरा। हाँ और जी। इसी से देखिए, एक बन्या आया, बन्या जो फ्लड होता है, बाढ़, सॉरी बाढ़ आया, तो बाढ़ में
मेरे सारे फसल नष्ट हो गए, सारे गाय ओ माय नष्ट हो गॉड। गए। उसके बाद मेरा शरीर नष्ट हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम आया और मैं मरने वाला था। देखिए, उसके बाद फैमिली का भी प्रॉब्लम्स आया, ठीक है। तो हाँ जी। कुछ भी नष्ट हो जाए, जब अपने आप को विश्वास रखते हैं और मन को समस्याओं में नहीं रखते, तो आपका समस्या अपने आप समाधान हो जाता है। कौन कहता है कि समस्या होने से आप ग्रोथ नहीं हो सकता? समस्या ही तो ग्रोथ की जननी है। प्रॉब्लम्स वाह। ही हमको जीवन में आगे बढ़ाता है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि टक्कर से तो आग पैदा होता है, टकराव से तो आग पैदा होता है। वही टकराव, हाँ जी। जब आप समस्या जब होती है, समस्या का मतलब टकराव, और वही आग टकराव। पैदा होता है जो उस आग से आपके आप ग्रो करें। शक्ति बढ़ता है। हैं तो आप बेसिकली हम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ना देखें, उसको एक स्टेपिंग स्टोन बनाएं आगे बढ़ने के लिए। उसी में पैर रख करके आगे बढ़ना है। हाँ, कभी जीवन में उसी पे। कभी जीवन में समस्या को डरना नहीं है, हाँ, वरन समस्याओं को और चलते रहना है। अपॉर्चुनिटी मान करके जितना है और आगे बढ़ना है जैसे जीवन जब में। नदी के रास्ते में कोई बड़ा सा पत्थर आता है तो वो और तेजी से उसके ऊपर से छलांग मार के जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल हम सब बिल्कुल। और ज्यादा अपनी शक्तियों को समझना है और ज्यादा ग्रोथ की तरफ जाना है। Such a लोग beautiful फ्रीडम message. I'm really, really thankful for you to have come to the show and enlightened all of us. And all the best for World School. और मैं जल्द ही दोबारा ऋषिकेश आऊंगी और आपको जरूर मिलूंगी आपका आशीर्वाद जरूर। लेने के लिए। श्रुति जी, थैंक यू आप सो जो मच। कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, देखिए, ये इस न्यूज़ के माध्यम से, 10 न्यूज़ के माध्यम से अलग अलग महान पुरुषों को बुला के लोगों को जो इंस्पायर कर रहे हैं, ये हाँ छोटे जी। काम नहीं। आप ऐसे काम थैंक करते यू सो रहिए, मच। लोगों को प्रेरित करते रहिए, लोगों को जीवन को बनाइए। और जो जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और श्रुति जी को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप लोग भी, हम सब लोग मिल करके एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। आइए एक साथ मिलते हैं और बड़े सरल सहज रूप से हम समाज की सेवा करते हैं। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, सारे दर्शकों को भी न्यूज को भी। धन्यवाद। हाँ जी। और 10 न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु जी। आप सब लोग आइए यहाँ ऋषिकेश, हमारे आश्रम में आपके लिए स्थान है। यहाँ रहने के लिए, योगा सीखने के लिए मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा, योग सिखाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा। नहीं तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेस हम कर रहे हैं। हाँ और जी। यहाँ नहीं आ सकते तो छोटे छोटे कोर्स होते हैं, ध्यान की छोटे छोटे कोर्स होते हैं, प्राणायाम की, जो आप घर बैठे जो रियल चीज होती है ना, आप जान पाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा। फिर मिलते हैं। हैं? प्रणाम। प्रणाम गुरु।